Dear student, welcome in this new lecture series of Power System 1. Here we are going to discuss the topic inductance of a single phase system or the as a part 1. Means here we will discuss about the means in detail means how we can evaluate the inductance of a single phase transmission system, or you can say that in single phase power supply system. So, as you know, the single phase supply system is what? It is a 2 wire system. तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट वी विल जस्ट रिवाइज द प्रीवियस थिंग. So, in the last lecture we have covered the part means how we can evaluate the inductance of a conductor due because of the two type of flux linkages. Friends, as you know, the inductance offered by a current carrying conductor is due because of the two type of flux linkages, either the flux linkage at the internal level or the flux linkage in externally. So, हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे हम डिस्कस करेंगे. So, friends, as we know, when we are talking about the inductance of a single phase 2 wire system, so let us consider a single phase overhead line consisting of 2 circular conductor parallel to each other. Means generally in a single phase transmission system there are 2 conductors, suppose conductor A and conductor B. So, these 2 conductors are running parallel or the placed parallelly to each other, and let us assume both conductors are identical and their radius is given by the r. So, here small r is the value, means you can say that radius of the conductor. So, and spacing between the conductor center to center, suppose this is a point of center of conductor A and B. So, the radius of conductor is r and the distance between distance between center to center point, that is your what, d meter. So, so for this type of structure of or arrangement of the conductor we will discuss the calculation of the inductance. Here it is assumed that conductor A is your go conductor and conductor B or the second conductor is known as a return conductor or the return path. So, here it is very clearly shown in this figure. Suppose conductor 1 and the conductor 2 is there, both having the same radius r and the distance is d. So, the internal flux linkage of conductor 1. So, if we are saying talking about the conductor 1, so internal flux linkage of conductor 1 due to the current in the same conductor is, यानी यहाँ पर हम कह रहे हैं कि conductor 1 का inductance with respect to the current which is flowing through this conductor. So, the current which is flowing through the conductor 1 और इसी कंडक्टर के इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की हम बात कर रहे हैं. So, we can say that the value will be equal to what, psi internal is equal to 0.5 I, where I is the current flowing through the current conductor into 10 to raise power minus 7 Weber turn per meter. So, this this I have already established, we have already established in the previous lecture. So, let us find out that this is the flux linkage internally, where we have to assume that the relative permeability of the medium is 1. So, the external flux linkage of the conductor 1 due to the current in the same conductor. So, one thing here we are talking about the flux linkage with the conductor 1 due because of the current flowing into the conductor 1. So, we are going to calculate the flux linkage of means what, flux linkage of the internally and similarly for the externally. So, psi external is equal to 2 into 10 to raise power minus 7, I is the current, ln, d is the distance, d minus r upon r Weber turn meter. So, psi external can be approximately equal to 2 into 10 to raise power minus 7 I ln d by r Weber turn meter if your d is very greater than r. So, normally अगर हम ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रक्चर्स को देखें तो जो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है दैट इज सफिशिएंटली लार्ज, और यू कैन से इट इज हैविंग अ वेरी लार्जर वैल्यू एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर. अगर इस कंडक्टर के रेडियस कंपेरेटिवली हम डिस्टेंस देखें तो ऑब्वियसली इट इज अ लार्जर वन. सो वी कैन सिंप्लीफाइड द इक्वेशन
into the form of this one. Now, so therefore the flux linkage of the conductor 1 due to the own conductor, अगर हम बात करें कि कंडक्टर 1 का जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है वो क्या होगा, दैट विल बी psi 11, यानी कंडक्टर 1 का फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर 1, तो वो होगा फ्लक्स psi इंटरनल प्लस psi एक्सटर्नल, यानी दोनों फ्लक्स लिंकेज को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. सो जो हमने पहले डिराइव किया है इन प्रीवियस स्लाइड लाइक these two formula. So we have already stated these things. So now if we put the values here, so we will get that I is equal to 1 upon 2 into 10 to the power minus 7 plus 2 into 10 to the power minus 7 ln d by r. So by simplification of this you can get the final equation in a form of this one, 2 into 10 to the power minus 7 I 1 by 4 plus ln d by r. बस हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, 2 to the power 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, जो ये जो टर्म है इस टर्म को हमने क्या किया, आउटसाइड ले लिया, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई करके हमने इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आई ln d बाई r e टू द पावर 1 by 4. So this is the final value of the flux linkage with respect to the conductor into the and the current which is flowing through that conductor. So psi 11 is what? So overall the psi 11 is equal to 2 into 10 to the power minus 7 ln I ln d by r dash. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो ये टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं r डैश से. सो r डैश इज व्हाट, इफेक्टिव रेडियस हम कह सकते हैं वेबर टन मीटर. तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, वेयर r डैश इज नोन एज व्हाट, दैट वैल्यू इज 0.7788 r, यानी जो e टू द पावर माइनस 1 by 4 की वैल्यू होगी दैट इज 0.7788 वैल्यू. सो इंटू r इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर. हम कह रहे हैं कि जो हम कंडक्टर चूज कर रहे हैं अपने लिए, उस कंडक्टर का जो इफेक्टिव रेडियस है, सपोज अगर हमारा कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का एक्चुअल रेडियस क्या है, r है, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका ये इफेक्टिव रेडियस है जिसको हम कहेंगे GMR of the conductor or geometrical mean radius. So in subsequent part of this lecture we will discuss these things in a detail, कि what do you mean by the GMR, what is the concept of the GMR and how we can evaluate the GMR of any conductor. So now come on to the next point, that is, so on the basis of that we can say that is similarly the flux linkage of conductor 1 due to the current in a second conductor is. अभी हमने बात की थी कि हमारा कंडक्टर 1 में जो करंट फ्लो कर रही थी और इस कंडक्टर में जो फ्लक्स का लिंक बन रहा था इसके साथ, वो फ्लक्स लिंकेज के बेसिस पे हमने इसका टोटल फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट किया. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरली वी कैलकुलेट द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू द करंट इन द सेकेंड कंडक्टर. यानी हम ये जो I की वैल्यू चूज करेंगे ये उस कंडक्टर की करंट ना होके क्या होगा, कंडक्टर सेकेंड की करंट होगी. सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज psi 12, हम इसको psi 12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 I ln r डैश अपॉन d वेबर टर्न मीटर. तो हम इसको लिख सकते हैं इसी सिमिलर टर्म पे, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज इक्वल टू ln r डैश अपॉन d. तो आप अगर देखें तो हमारा ये टर्म केवल क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है. सो यू कैन कैलकुलेट इट, अगर आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सो नाउ द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर 1 ड्यू टू द करंट इन बोथ द कंडक्टर. अभी करंट क्या है हमारी, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 दोनों में है. तो अगर दोनों के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज psi 1, कि कंडक्टर 1 में जो फ्लक्स लिंकेज है इज व्हाट, दिस psi 11 माइनस psi 12. हमने ये दो टर्म को, यानी दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों क्या है एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन होंगे, तो उससे इट विल बी -1. सो वी कैन से दैट कि जो हमारा कंडक्टर 1 में जो हमारा फ्लक्स लिंकेज होगा वो ये वैल्यू होगी. नाउ बिकॉज द करंट इन द कंडक्टर इज अपोजिट इन द डायरेक्शन, मैंने पहले कहा कि दोनों कंडक्टर, एक गो करंट कंडक्टर है, एक रिटर्न कंडक्टर है, यानी एक जिससे आप
current is delivering and second is the return path for the entire circuit, तो उसको हम कहते हैं रिटर्न कंडक्टर है. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट दैट पर्टिकुलर मीन्स टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, दैट इज लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस कि एक साई 1 माइनस साई 2, अगर दो पॉइंट के बीच में हम फ्लक्स लिंकेज टोटल निकालें माइनस कर रहे हैं बिकॉज द करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इन द प्रीवियस इक्वेशन जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में हमने माइनस की जगह पे क्या किया है, वी विल अज्यूम इट एज अ पॉजिटिव और हमने इसको फिर से सिंप्लीफाई किया. सो साई 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 7 आई एल एन डी बाई आर डैश. सो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी एज ए टोटल फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर 1. So now we can represent it as a equation number 1. Now the inductance of a single phase circuit की अगर हम बात करें, अब अभी हमने एक कंडक्टर का इवेल्युएट किया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर सर्किट, यानी 2 कंडक्टर्स की बात करें. सो L इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 10 टू रेस पावर 7 एल एन डी बाई आर डैश. हम दोनों के लिए अगर बात करें सिंगल फेज सर्किट के लिए, तो इंडक्टेंस L जो होगा दैट इज 4 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 7 एल एन डी बाई आर डैश हेनरी पर मीटर, यानी 1 मीटर की डिस्टेंस के लिए हम ले रहे हैं. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन नंबर 2. सो द इंडक्टेंस पर कंडक्टर इज व्हाट, L बाई 2. हम कह सकते हैं एक का इंडक्टेंस अगर ये वैल्यू है तो मीन्स पर कंडक्टर क्या होगा, ओवरऑल इंडक्टेंस इज दिस वन. सो पर कंडक्टर L बाई 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम हियर. सो in this equation, so you will get 2 into 10 to raise power minus 7 ln d by r dash Henry per meter, that is the inductance per conductor due because of the flux linkage of the both the current. So hence L is equal to 0.1 ln d by r dash milli-Henry per kilometer if you represent it into the form of milli-Henry. तो यहाँ पर हमने यूनिट कन्वर्जन किया, इट इज़ अ हेनरी पर मीटर एंड इट इज़ अ मिली हेनरी पर मीटर. सो जनरली इंडक्टेंस इज गिवन फॉर एनी पावर सप्लाई सिस्टम इज इन मिली हेनरी. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ मिली हेनरी पर किलोमीटर. नाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ if we are saying that the value of the inductance of one conductance due to the current in the same conductor is obtained from equation number 4. So हम equation number 4 का use करके हम मीन्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे. So value of the inductance of a one conductor due to the current in the same conductor is obtained from equation number 4. Loop inductance means that inductance of a single phase circuit and it is equal to the double of the inductance per conductor in a single phase line. तो जनरली हमारे एक कंडक्टर के लिए L हमने कैलकुलेट किया है. ओवरऑल लाइन की इंडक्टेंस की बात करेंगे, इस इज अ 2 टाइम्स ऑफ द इंडक्टेंस ऑफ द ओवरऑल मीन्स इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल circuit. So now the second thing is your concept of GMD and GMR of a composite conductor. Now here we means we in our mind there is a one question, what do you mean by the composite conductor, and means what is the concept of GMD and GMR as seen in previous means, that is like GMR is known as a geometrical mean radius and it is known as a effective radius of any conductor. तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने GMD, GMR एंड द कंपोजिट कंडक्टर इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मीन्स GMD क्या है, GMR क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वैल्यू ऑफ जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस और जियोमेट्रिकल मीन रेडियस इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस. एट द सेम टाइम व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोजिट कंडक्टर, कंपोजिट कंडक्टर्स क्या हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे. सो कंपोजिट कंडक्टर आर व्हाट, the composite conductor are the composition of a different metal conductors placed in a single straits. अगर हम एक ही स्ट्रेट की बात करें, कंपोजिट कंडक्टर क्या है कि अगर हम मल्टीपल मेटल के कंडक्टर्स को, मल्टीपल कंडक्टर को कंपोजिट करके और इस तरह से एक सिंगल स्ट्रेट्स में रखें तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ कंपोजिट कंडक्टर. द कंपोजिट कंडक्टर इज अ मेड ऑफ अ वेरियस मेटल सिमिलर टू द कंडक्टर्स. कई सारे मेटल को हम मिक्स करके डिफरेंट टाइप के मेटल क्वालिटी को यूज़ करके हम एक कंपोजिट मटेरियल के तौर पे हम एक बंच ऑफ कंडक्टर लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंपोजिट कंडक्टर.
सो दीज वेरियस मेटल कंडक्टर्स आर प्लेस इन अ सिंगल स्ट्रैंड, और जो पूरा बंच होता है हम उसको एक स्ट्रैंड्स बोलते हैं। तो एक स्ट्रैंड के अंदर हमारे मल्टीपल कंडक्टर होते हैं। सो मल्टीपल कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर इज अ सिंगल स्ट्रैंड इन termed as a composite conductor. You can see from the figure, suppose these are the metal conductors, here it is aluminum conductor, these are the conductors, or these are the basically aluminum conductors, and inner side there are steel conductors. So as you know, these are the basically the structures of the ACSR conductor. ACSR conductor ही ज़्यादातर हम उनको composite conductors बोलते हैं। इसके एक स्ट्रैंड में आपके मल्टीपल एल्युमिनियम कंडक्टर्स होते हैं, और उन एल्युमिनियम कंडक्टर्स के मिड में, कोर में एक हम क्या रखते हैं, सेंटर पॉइंट पे एक बंच ऑफ स्टील कंडक्टर रखते हैं। सो जो एल्युमिनियम कंडक्टर है, दीज आर बेसिकली यूज एज अ कंडक्टर टू कैरी द मेन करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। एंड सेकेंड इज इनर पार्ट में हमारा जो स्टील कोर है, दैट इज ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ थ्रू द कंडक्टर्स और द लाइन्स। तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिट कंडक्टर। तो आप मीन्स देख के ही पता चलता है कि क्योंकि हर एक स्ट्रट के अंदर एक कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर है, सो हर एक कंडक्टर के करंट अब क्या करेगा, ये जो टोटल करंट होगी दैट विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू द ऑल कंडक्टर। हम ये मान सकते हैं कि ये इक्वली डिवाइड होंगे सारे में, और इसकी वजह से जो हर एक कंडक्टर के करंट की वजह से एक उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो उसका ऑफर करेगा, यानी जो फ्लक्स लिंकेज उसका इंटरनल होगा, और प्लस फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कंडक्टर, एंड सिमिलर फॉर द अदर कंडक्टर्स। सो यू कैन एज्यूम दैट कि फॉर अ कंपोजिट कंडक्टर द कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस इज अ लिटिल बिट, you can say that कि major topic for a power system designer, and it is also a very important requirement to evaluate the overall in parameter of any transmission line. तो वहाँ पर इंडक्टेंस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर GMD। तो GMD इज व्हाट? GMD स्टेट्स फॉर द जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस। जियोमेट्रिकल मीन डिस्टेंस का मतलब कि आप इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स, यानी हम कंडक्टर के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस ना लेके एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे। अभी हमने लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में क्या देखा कि एक हमारा कंडक्टर 1 है एंड सेकेंड इज योर कंडक्टर 2। तो अभी क्योंकि ये कंडक्टर हमारे सिंगल कंडक्टर ना होके दीज आर द कंपोजिट कंडक्टर, ये हमारे कंपोजिट कंडक्टर्स हैं। सो व्हाट इट मीन्स कि अब हमारा जो इंडक्टेंस कैलकुलेशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ईच कंडक्टर, यानी हर एक कंडक्टर के रिस्पेक्ट में आपको इंडक्टेंस इवेलुएट करना होगा। और जो हम डिस्टेंस लेंगे ओवरऑल, पहले हमने अगर पूरा लिया था तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट किया था, बट हियर बिकॉज नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन अ वन स्ट्रेट, तो हमें सभी के साथ डिस्टेंस ले। सपोज अगर हम एक कंडक्टर ले लें और यहाँ पर एक पॉइंट P लें, one point P is here. So what will be the distance of conductor with P? If you are calculating from the center, then it is a some value, but if you are taking the different points, suppose 1 point, 2 point, 3 point, 4, 5 and 6 point, so what will be the effective distance from each? So what means each and every point having a different distances from that point P. तो अगर हम फ्लक्स लिंकेज विद द एक्सटर्नल कंडक्टर कह रहे हैं या फ्लक्स लिंकेज विद द अदर पार्ट कह रहे हैं, तो वहाँ पर डिस्टेंस हम क्या लेंगे? सो इन दैट सिचुएशन वी रिक्वायर टू इवेलुएट द GMD ऑफ द इंटायर कंडक्टर। यानी मेनली कंपोजिट कंडक्टर में जहाँ पर मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं, वहाँ पर किसी पॉइंट पे अगर हमको डिस्टेंस इवेलुएट करना है कंडक्टर का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो हम जनरली GMD का यूज़ करते हैं, यानी इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर हम इवेलुएट करते हैं। अब अगर P पॉइंट पे भी कोई दूसरा कंडक्टर है जो कंपोजिट कंडक्टर है, सो सेम थिंग इज हैपन कि हर एक स्ट्रट के हर एक कंडक्टर के साथ आपका एक लिंकअप होगा। तो इस तरह से आपका पूरा इंटायर GMD का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश होता है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द GMR, GMR स्टैंड फॉर द व्हाट?
ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, जैसे आपका एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस है बिटवीन द कंडक्टर, सिमिलरली यू रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, इक्विवेलेंट रेडियस, क्योंकि अभी यहाँ पर कंपोजिट कंडक्टर में मल्टीपल कंडक्टर है एंड ईच कंडक्टर हैविंग द डिफरेंट रेडियस, और सभी का इस पूरे का सेंटर पॉइंट यहाँ पर स्टील कोर पे है। तो अगर हम इस पॉइंट्स पे इसका देखें तो रेडियस हम किस तरीके से इवेलुएट करेंगे ओवरऑल कंडक्टर का। सो इन दैट सिचुएशन वी विल इवेलुएटिंग द GMR और द इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि ये डिपेंड करेगा कि कंडक्टर का साइज और अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से कंडक्टर को रखा गया है, प्लेस किया गया है, या उनके अरेंजमेंट किस तरह से हैं। So now here we are going to talking about the calculation of the GMD GMR because it is a very important part. Friends, you know हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसमिशन सिस्टम। तो अब सिंगल फेज ट्रांसमिशन सिस्टम में 2 वायर हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सपोज अगर सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में हम 2 कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग द 2 कंडक्टर्स, 2 composite conductors, so it is very essential that you should evaluate the GMD and GMR of any composite conductor or a supply system. Then in that situation you are able to evaluate the actual inductance or the capacitance of any line. तो जो हम इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफ एनी ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमें GMD और GMR इवेल्युएशन क्राइटेरिया क्लियर हो। सो लेट अस सपोज इफ़ वी हैव अ n नंबर्स, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर्स हैं। सो व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ अ n नंबर? सपोज इफ़ यू हैव अ नंबर a1 a2 a3 लाइक दिस वन, a1 a2 a3 a4 an, अगर आपके पास n नंबर्स हैं और इनका ज्योमेट्रिकल मीन कैलकुलेट करना हो, सो द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दीज नंबर्स व्हाट a1 इंटू a2 इंटू a3 लाइकवाइज an टू द पावर 1 बाई n, यानी जितने नंबर आपके प्रेजेंट हैं, मीन्स हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इनटू दैट वन, सो पावर 1 बाई 2, और रूट ओवर कह सकते हैं कि हम इवेलुएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल नंबर्स। सो द सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ GMD। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं GMD को कैलकुलेट करने के लिए और GMR को कैलकुलेट करने के लिए। सो इन GMD we take the geometrical mean distance between the states of 2 transmission line, while the GMR, the geometrical mean अगर हम बात करें means geometrical mean distance between the state of a single composite conductors are calculated. So let us just take a one means example for understanding the some more understanding towards the calculation of GMD and GMR. So let us assume that 2 composite conductors are used in a transmission line as shown in figure. Let us कि यहाँ पर 2 कंडक्टर हैं, एक को हमने गो कंडक्टर से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे को हमने कहा है दिस इज अ रिटर्न पाथ, रिटर्न कंडक्टर, एंड गो कंडक्टर हैविंग द n नंबर ऑफ 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ कंडक्टर्स इस स्ट्रैंड में, और इस स्ट्रैंड में क्या है m नंबर ऑफ कंडक्टर है। तो यहाँ पर हमने n नंबर और यहाँ पर m नंबर कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया है। सो लेटस कि ये जो रेडियस वाइज अगर हम कंडक्टर को देखें तो हर एक कंडक्टर का रेडियस हमने आइडेंटिकल लिया है। So in that situation, for getting the GMD, first we need to calculate the distance between the states, go and return conductor, यानी इन 2 कंडक्टर के बीच का हमें डिस्टेंस इवेलुएट करना होगा अगर हमें GMD इवेलुएट करना है। So how we can evaluate the GMD? So let D11, D12, 12, D21 and DMN, these are what? These are your distances between the different conductor from conductor 1 to conductor 2, यानी go और return करंट, like D11 is distance between the first strand of the go and return conductor, यानी 1 to 1, हमने इस कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस लिया है that is D11. Similarly D12 is what? Distance between conductor 1 and 2. So this conductor and this conductor, the distance will be little bit changed. So on the same manner we will evaluate the distance between the
डिफरेंट कंडक्टर्स। हमने सभी कंडक्टर का डिफरेंस लिया और सभी डिस्टेंसेज इवेलुएट करने के बाद हमें क्या पता है कि GMD इज व्हाट, बेसिकली दैट इज द m इंटू एन, यानी जितने कंडक्टर हैं, बिकॉज आइदर इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम सो m n स्क्वायर, अदरवाइज m इंटू एन रूट ओवर d11 d12 d1m similarly 21, likewise distance between the conductors mutually, सभी कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस लेंगे. So GMR of the solid conductor or the strength of the radius R is defined as a fictitious radius R dash having no internal flux. एक ऐसा fictitious radius जिसका कोई भी internal flux ना हो, linkage, but having the same inductance as the original conductor. तो हम कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं R dash is equal to this quantity 0.7788 R. Now so for calculating GMR, first we find the distance between the individual strata. Thus if there are n stratas in a composite conductor, then obviously there will be n square distances between the stratas. यानी एक ही हम स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रैंड में जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं हम उनका GMR कैलकुलेट सपोज गो कंडक्टर का ले रहे हैं. सो n स्क्वायर R डैश D12 13 1n similarly 21 23 2, likewise we can calculate the GMR of the conductor. So let us consider an example. Suppose go conductor contained a 3 stratas of a radius this millimeter, while the return conductor contains the 2 of radius 5 mm. एक ऐसा केस लेते हैं, सपोज यहाँ 1 2 3 स्ट्रेट्स, एक स्ट्रेट्स में 3 कंडक्टर हैं और इसमें D और E, दूसरे में आपके 2 कंडक्टर हैं, and the distances are given into this form. So and the formulas are already we have established for GMD GMR. So GMR is a individual stratas is go conductor is what, R dash means multiplied by this is what, this mm, and GMR of the go conductor क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को, ठीक है, एंड पावर 10 to mn, तो आपको ये मिल गया. सो GMR of the go conductor will be evaluated by this one. Similarly GMR of the individual stratas in a return conductor is R dash is equal to again this quantity, and hence the GMR of the return conductor will be calculated by this formula. So the given distance between the strands, अब अगर हम बात करें GMD calculation की, so the given distance between the strands DAB is this and this. Now calculate DAE, क्योंकि हमें केवल कंडक्टर के बीच की ये डिस्टेंस गिवन है, बट वी वांट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, सिमिलरली दिस डिस्टेंस, ठीक है, या फिर ये डिस्टेंस. तो वी रिक्वायर्ड द कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी वन. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस वी कैन कैलकुलेट इट. नाउ सो देयरफॉर द GMD फॉर द कॉन्फ़िगरेशन विल बी calculated as this one. So this is the overall concept related to GMD and GMR calculation. So friends, this is the these are the some references. I hope today's topic will be helpful for you to understand the fundamentals related to the inductance calculation of a single phase transmission line with two composite conductor. So in next lecture we will discuss some little bit more about the single phase transmission system or the 2 wire transmission system and the calculation of the inductance of a single phase transmission system with the 2 composite conductors. Friends, and most of the contents of this particular topic is taken from the first one part, your Bala Shubha and some of the part is from the Vadhva. So these are the prescribed from the UPTU for AKtU for this particular subject. So thank you.